ڈالنے کے لیے نیب سرگرم، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے لیے ایبٹ ہری پور اور مانسیرا میں چھاپے، لیگی رہنما ہاتھ نہ آئے، رہائش گاہوں کی مانیٹرنگ جاری ہے، آج گرفتار کر لیں گے، نیب حکام کو یقین۔ جمعے کو پاکستان واپس جائیں وہ بھی، اور میں ابھی تو میں اور میاں صاحب ہی جیل جائیں گے، اپنے گھروں سے 25 جولائی کو نکلیں، ووٹ دیں، پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط بنائیں۔ مسلم لیگ نون جبر اور ظلم کے باوجود پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ جیلوں سے نہیں ڈرتے، جمعے کو پاکستان واپس آئیں گے، نواز شریف اور مریم نواز کا اعلان، کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کرنے کی بھی ہدایت۔ احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ الیکشن میں 17 دن باقی، اتوار جلسہ ڈے بن گیا، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایبٹ آباد میں پاور شو، شہباز شریف ہارون آباد میں پنڈال لگائیں گے، بلاول بھٹو زرداری کا مظفر گڑھ جلسے کا پلان، سراج الحق شہر قائد میں ریلی نکالیں گے، عمر کوٹ میں پی ٹی آئی اور گرینڈ ڈیموکریٹکس الائنس کے رہنما کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ کورٹ کا ایکشن یا عوامی رد عمل، نگران حکومت نے پیٹرول 4 روپے 26 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے 37 پیسے سستا کر دیا، دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی، حکومت کو 10 ارب کا نقصان ہوگا، نگران وزیر اطلاعات بیرسٹر علی ظفر کی بریفنگ۔ 5-10 روپے مہنگا کر دیتی ہے اور پھر 1 روپے یا 50 پیسے سستا کرتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری روٹین بن گیا ہے کہ 20 روپے جو ہے یہ مہنگا کر دیتے ہیں اور بعد میں 4 روپے سستا کر دیتے ہیں۔ 20 روپے مہنگا کر دے اور 4 روپے سستا کریں، یہ کیا ہے؟ جو بھی چیف جسٹس نے کہا ہے اس پر عمل درآمد کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی مہربانی ہے، اگر اور کام کر دے تو بہتر ہے۔ پتہ تو رہی ہے کل صبح پھر بڑھ جائے، یہ صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب عوام خوش ہو جاتی ہے تو خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے پر شہریوں کا ملا جلا رد عمل، عوام نے اضافی ٹیکسز ختم کر کے نرخ میں مزید کمی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حکومت کے پیسہ کمانے کے لیے ہیں، ہمیں بتائیں نرخ میں اتار چڑھاؤ کیسے کیا جاتا ہے، درآمد کروڈ آئل اور ریفائنری تک پہنچنے میں کیا قیمتیں ہیں، از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کا استفسار۔ ملک میں پانی کی صورتحال سنگین، تربیلا ڈیم میں پانی کا قابل استعمال ذخیرہ ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا، ارسا کا سندھ اور پنجاب میں 15% پانی کی کٹوتی کا فیصلہ، کراچی کو پانی فراہم کرنے والا ہب ڈیم بھی سوکھنے لگا۔ پشاور کے علاقے شہاب خیل میں واقع پل خستہ حالی کا شکار، سنگل روڈ ہونے کے باعث دونوں اطراف کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد ایکسپریس وے پر ٹریفک حادثہ، تیز رفتاری کے باعث 3 گاڑیاں ٹکرا گئیں، 3 افراد جاں بحق 2 زخمی۔ ہوابازی کا تاریخی لمحہ، دنیا کا سب سے بڑا مسافر طیارہ آج پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کرے گا، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایئر بس A380 کی لینڈنگ کے انتظامات مکمل۔ متحدہ کے بانی رہنما سلیم شہزاد برطانیہ میں انتقال کر گئے۔
कैंसर के आर्जे में मुब्तला सलीम शहजाद लंदन के अस्पताल में जेरे इलाज थे। जात पात न मजा, सिर्फ इंसान इंसान। ताबीर है जिसकी हसरत गम, ऐ हम नफसों को खा गए हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। अंधेरों में रोशन सितारा अकेला चला था मगर बन गया हजारों का सहारा। इंसानियत का सबक ऐसा पढ़ाया कि दुनिया भर में निसाब बन गया। बेसहारों के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी की आज दूसरी बरसी। तहरीके आजादी में नई रूह फूंकने वाले शहीद बुरहान वानी की दूसरी बरसी। काबिज फौज के इंसानियत सोच मुजालिम के बावजूद पूरी वादी में कश्मीरियों के मुजाहरे। शहीद की बरसी पर पाकिस्तान में भी तकारीब। आजाद कश्मीर में निकाली गई रैलियों में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। उसके बाद अभी वो गुज़िश्ता दिनों इलाज के दोबारा लंदन चले गए थे। उनकी जो फैमिली है, उनकी जो अहल खाना है, 5 बेटियां और बेवा, वो लंदन में ही है। तो वहीं वो अस्पताल में जेर इलाज थे और गुज़िश्ता रोज उनके 24 से 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल करार दिए गए थे उनकी सेहत के हवाले से। अब उनकी खानदानी ज़राए का कहना है कि उनका लंदन में इंतकाल हो गया है और 2 रोज बाद उनकी तस्वीर लंदन में ही मुतवक्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आज गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि उनकी गैरत का तकाजा है कि वो आज गिरफ्तारी दे दें। कारकुनों के लिए एक ऑडियो पैगाम उन्होंने जारी किया जिसमें उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि आज वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। नैब भी तैयारियां कर रही है, छापे मारे जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ऐसे में उनकी जानिब से एक ऑडियो पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आज गिरफ्तारी दे देंगे। उनकी गैरत का तकाजा है कि वो आज ही गिरफ्तारी दे दें। उनके खिलाफ फैसला आ चुका है। ऑडियो पैगाम उनका क्या है वो आपको सुनवाते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आज गिरफ्तारी देसा और मुझे देनी चाहिए। बड़ी गैरत का तकाजा है। पहले माड़ा दिल आखता सा कि मैं तनोल दे सेंटर पे खला, मगर आज मैं किसी और शहर तो गिरफ्तारी देना जा रहे हैं जिथा पार्टी का डिसीजन है। जिला मानसरा के अवाम वास्ते मैं एक पैगाम देना, जेल बचो लोगो। आज मुतहद हो के सरदार मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिला मानसरा बचो इसी तरह जिताओ जिस तरह 2013 में आया है। तो संदे वोट की ताकत नाल आज मोटरवे भी आई है और मसाइल भी इंशाल्लाह हल हो सके। इसी से मुतालिक बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कुछ पता है कि वो इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हैं, किस शहर में हैं? क्योंकि नैब भी छापे मार रही है और वो कह रहे हैं कि वो खुद गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए, नैब के साथ साथ 5 शहरों की पुलिस जो है वो भी उनकी तलाश कर रही है, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, हरीपुर और मानसेरा की पुलिस है। और जो नैब के साथ ताउन करते हुए, क्योंकि नैब ने परपीचुअल अरेस्ट वारंट भी हासिल किए थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर के, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी में कामयाबी नहीं हुई। और अब कैप्टन सफदर का ऑडियो पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो आज ही गिरफ्तारी देंगे और कभी इम्कान है कि वो इस्लामाबाद से गिरफ्तारी देंगे। जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर अभी भी हज़ारा डिवीजन में है और वो रवाना हो रहे हैं वहां से इस्लामाबाद के लिए। और उनको पार्टी क़यादत ने यही हदायत दी है कि वो इस्लामाबाद में ही अपनी गिरफ्तारी दें और यहाँ से वो प्रॉपर्ली अपने कारकुनान के साथ आकर गिरफ्तारी दें नैब के दफ्तर में। नैब पिंडी का दफ्तर है इस्लामाबाद के मेलोडी के इलाके में और यहाँ पर जो है वो आएंगे और अपना गिरफ्तारी देंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने यह कहा है कि उनकी गैरत का तकाजा है कि वो आज गिरफ्तारी दे दें और वो चाहते थे कि वो अपने आबाई इलाके तनावल से गिरफ्तारी दें, लेकिन पार्टी क़यादत ने हदायत की है उनसे। लंदन में इंतकाल करके कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और इनके हवाले से कहा जाता है कि काफी अरसे से वो अब बीमार भी थे और आज से 1.5 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान वापस आकर सियासत में जब हिस्सा लेने का फैसला किया था तो उस वक्त उनकी हालत बेहतर नहीं थी, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि वो पाकिस्तान आकर अपने खिलाफ जो मुकदमात हैं इनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात भी लांदी समेत मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ जो है वो तशद्दुद हंगामा आ रही के मुकदमात दर्ज थी जिसमें उन्होंने जमानत हासिल की थी। सियासत में भी ये
हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन ना वो पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो सके और ना ही वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हो सके जिसके वो बानी रुकन थे। तो उसके बाद अभी वो गुज़िश्ता दिनों इलाज के लिए दोबारा लंदन चले गए थे। उनकी जो फैमिली है, उनके जो अहल खाना है, 5 बेटियां और बेवा, वो लंदन में ही है। तो वहीं वो अस्पताल में जेर इलाज थे और गुज़िश्ता रोज उनके 24 से 48 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल करार दिए गए थे उनकी सेहत के हवाले से। अब उनकी खानदानी ज़राए का कहना है कि उनका लंदन में इंतकाल हो गया है और 2 रोज बाद उनकी तफसील लंदन में ही मुतवक्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आज गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि उनकी गैरत का तकाजा है कि वो आज गिरफ्तारी दे दें। कारकुनों के लिए एक ऑडियो पैगाम उन्होंने जारी किया जिसमें उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि आज वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। नैब भी तैयारियां कर रही है, छापे मारे जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ऐसे में उनकी जानिब से एक ऑडियो पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आज गिरफ्तारी दे देंगे। उनकी गैरत का तकाजा है कि वो आज ही गिरफ्तारी दे दें। उनके खिलाफ फैसला आ चुका है। ऑडियो पैगाम उनका क्या है वो आपको सुनवाते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आज गिरफ्तारी देसा और मुझे देनी चाहिए बड़ी गैरत तकाजा है। पहले माड़ा दिल आखता सा कि मैं तनोल दे सेंटर पे खला, मगर आज मैं किसी और शहर तो गिरफ्तारी देना जा रहे हैं जिथा पार्टी का डिसीजन है। जिला मानसरा दे अवाम वास्ते मैं एक पैगाम देना, जेल बचो लोगो। आज मुतहद हो के सरदार मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिला मानसरा बचो इसी तरह जिताओ जिस तरह 2013 में चल रहा है। तो संदे वोट की ताकत नाल आज मोटरवे भी आई है और मसाइल भी इंशाल्लाह हल हो सके। इसी से मुतालिक बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कुछ पता है कि वो इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हैं, किस शहर में हैं? क्योंकि नैब भी छापे मार रही है और वो कह रहे हैं कि वो खुद गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए, नैब के साथ साथ 5 शहरों की पुलिस जो है वो भी उनकी तलाश कर रही है, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, हरीपुर और मानसेरा की पुलिस है। और जो नैब के साथ ताउन करते हुए, क्योंकि नैब ने परपीचुअल अरेस्ट वारंट भी हासिल किए थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर के, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी में कामयाबी नहीं हुई। और अब कैप्टन सफदर का ऑडियो पैगाम जारी किया गया है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो आज ही गिरफ्तारी देंगे और कभी इम्कान है कि वो इस्लामाबाद से गिरफ्तारी देंगे। जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर अभी भी हज़ारा डिवीजन में है और वो रवाना हो रहे हैं वहां से इस्लामाबाद के लिए। और उनको पार्टी क़यादत ने यही हदायत दी है कि वो इस्लामाबाद में ही अपनी गिरफ्तारी दें और यहाँ से वो प्रॉपरली अपने कारकुनान के साथ आकर गिरफ्तारी दें नैब के दफ्तर में। नैब पिंडी का दफ्तर है इस्लामाबाद के मेलोडी के इलाके में और यहाँ पर जो है वो आएंगे और अपना गिरफ्तारी देंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने यह कहा है कि उनकी गैरत का तकाजा है कि वो आज गिरफ्तारी दे दें और वो चाहते थे कि वो अपने आबाई इलाके तनावल से गिरफ्तारी दें, लेकिन पार्टी क़यादत ने हदायत की है उनको कि वो इस्लामाबाद में जाकर अपनी गिरफ्तारी दें। और अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर के जो हमारे करीबी ज़राए हैं वो बताते हैं कि वो हज़ारा से रवाना हो रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। अभी तक उन्होंने अपनी लोकेशन यानी आज ही वो किसी वक्त गिरफ्तारी दे देंगे। शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। एक और जुमा और एक और बड़ी खबर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 13 जुलाई को वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में हुकाम रेड वारंट डिक्टेटर के लिए संभाल कर रखें। वो और मियां साहब जेल जाएंगे, लेकिन कारकुन इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें। हेवनफील्ड रेफरेंस में सजा के फैसले के बाद एक और बड़ा फैसला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वारंट जारी होने पर लीगी क़यादत ने जुमे को वतन वापसी का ऐलान कर दिया।